So this mirror practice is also, you know, very important. Yeah. For I do personal growth. every day. Every day, na Chaya ji? I हाँ do जी. every day this mirror practice. Absolutely, absolutely. आप देखोगे ये stars like Anil Kapoor and all, ये लोग बहुत mirror talk बोलते हैं ना, बहुत talk and looking into the वो mirror. एक मूवी था ना अमिताभ का, वो बैंडेड लगाता है मिरर में. Which movie was that? अमर अकबर और स्वामी क्या? कौन सा था I don't गाना? remember, but there He is was one talking movie. to the mirror all the time. Of he was drunk and he was doing that. कि बैंडेड लगा रहा है. Right, I remember. I'm not remembering the name. नसीब. नसीब था नहीं, क्या? it was I think Amar Akbar and Anthony. हाँ, Yes, yes. एक्चुअली उसका नाम अमर 2-3 अकबर. मूवीज में है ऐसा. नहीं वो अमर अकबर का ही था. वो एकदम साइड में खड़ा होकर पूरा टाइम हाँ, बात जो ही बैंडेड लगा रहा है वो Bandage पीट कर हाँ, आता पर है. ऐसा एक सीन ना पिट कर नसीब आता है. में भी है. हाँ, okay. So they all do lot of mirror talk and all, you know, जिनको जैसे कि अगर कोई speech देने भी जाना है, if you are hesitant, you know, बोलते हैं ना mirror के सामने, so like it's like affirming and you know give that confirmation to yourself. So But मैं रोज एक ही चीज बोलती हूँ पायल जी. Should we say some different things? Every day I say same thing. I love you. first three, I respect you. हाँ, वो तो आप अपने आप के लिए वैसे बोल रहे हो, नहीं तो जैसे कि 3 चीज जैसे इसमें बोला था ना कल, 3 चीज जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, तो आप रोज अलग अलग 3 चीज के लिए भी हो सकते हो ग्रेटफुल. हाँ. Okay. बट ना बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ा वो एक दिन करने से. तो एक दिन nothing happens in a day, nothing will happen in a day. Actually. That is just a small experience. But when you look into the eyes and then you say तो सच में एक फर्स्ट डे भी कुछ तो फीलिंग आती है थोड़ा If सा you ना. have never done that before, if you have never done that before and if you're doing it for the first time, you see the difference. एक तो होता है बस इधर उधर देखते हुए बोल दिया, एक you look into the eyes and then say. And another thing which I noted was कि मतलब कल रियलाइज किए एक बात कि हम मतलब मिरर में देखते भी हैं ना तो कितनी बार अपने आप को अनदेखा कर देते. मतलब यू नॉट एक्चुअली कॉन्शियस दैट यू आर लुकिंग एट समबडी इन द मिरर. So yesterday we were consciously looking at ourselves. Instead कि भाई ठीक है शीशा में देख रहे हो कौन है, उनको कोई मतलब नहीं हो रहा था. But yesterday we were looking at ourselves. Yes, you never pay attention to the person in the mirror, you know. Yes. It's like just. I wanted to ask you one thing. हाँ जी. जैसे हमने टेक अवे ऑर्डर किया था, so that day we got the food and I really did not enjoy that. So मतलब normally जो freshness होती है इतनी freshness नहीं थी food में. And at that खा लिया, उसके बाद में then I said कि नहीं इतना मजा नहीं आ रहा and the food was not that great and all that. And then later I realized that I should have not said that. तो मुझे ये पूछना था कि मतलब ऐसे जब reaction होता है तो क्या करना चाहिए? Again, one complaint is equal to 10 gratitude to the person, to the delivery people, to the company, to the place from where you ordered. Yeah, that I did. That Especially I realized. Food. You know, कितनी बार ऐसा होता है ना, बोलते हैं ना, कितनी बार ऐसा होता है when you are so busy in a day, at times we miss certain food meal. You know, कभी lunch या कभी कोई पास skip हो जाता है, या maybe your home, you know, you are hosting a party, but you don't get to enjoy the food or maybe get. तो कहीं ना कहीं हम लोग कहीं का शुक्राना मिस हुआ है हम लोग का. You know, food को लेके we must have complained somewhere that you don't get food on that day, and we don't realize. हम लोग सोचते हैं ना कि अरे मेरे लिए बचा नहीं. हम लोग सोचते हैं कि maybe I was too busy, so I did not get time. But why we missed that meal? You know, because of lack of gratitude for you, we must have complained somewhere, you know, regarding food. Okay. पायल एक चीज बोलना था मुझे आज something happened with me today कि 4-5 दिन से ना मैं नोटिस कर रही थी that my staff they were just ignoring कि हम जो भी बोल रहे थे उसको. So you know ठीक है मैं भी उसको lightly ले रही थी, चलो ठीक है. But suddenly today during lunchtime I said something and they were busy talking amongst themselves and all I just completely lost it. तो वो अब how do you, because उस टाइम तो मैंने बहुत उन पे चिल्लाया भी and everything. Now I'm realizing
कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ but it just happened and I could not control myself and वो 10-15 मिनट तक it was with me. I just could not shake it. ओके हाँ सो जहाँ हम लोग से भूल से हो जाता है यू नो इन लोग वो ऐसे सिचुएशन होता है यू नो इन द स्पर ऑफ द मोमेंट में भी कभी कभी निकल जाता है इट इज नेचुरल बिकॉज वी आर नॉट दैट प्रैक्टिस यू नो वेल तो अगर जहाँ भी कंप्लेन हो यू नो यू कुड हैव कम टू द रूम लेटर ऑन व्हेन यू काम डाउन यू टेक योर notebook and a pen and start writing gratitude nothing else you can just start writing gratitude Yes, Start that और बहुत बाकी फर्क फिर- पड़ता है, exactly बहुत फर्क जैसे पड़ता है. ढूंढ के तो थोड़ा सा बोला, Just say in the mind. हाँ वही मैं पूछ रही हूँ कि I was if you walking say in and I your was mind लेकिन उस समय उनका जो state of mind रहेगा इतने गुस्से में रहेंगे या और इतने हाँ। thoughts आएंगे ना तो वो उस हाँ, समय वो हाँ। मन से कुछ निकलता नहीं है but when you write it down हाँ, हाँ। then it's all gone okay. Same So thing अभी happened से- with me, you know. Okay, thank you so much. thank you Shanti Same thing happened with me. Maid के साथ में कुछ Hi, था. Payal ji. hi Nita I ji. have one sharing. yes let Oh, Bela ji oh. complete Mera- yes let Bela ji complete yes Okay. हाँ जी Sorry. So then, you know, she was giving me a little bit of problem. Then I started writing for 3-4 days. I mean, I think after 3 days only, she changed totally. Like pura 360-degree change. I was shocked. Matlab, she was saying that I'm leaving, I will not work and all that. And after 3 days, not even 3 days, 2 days after, she said, no, I'm not going anywhere. I'm staying here only. I said, wow, yeah, that this gratitude really, but I was writing continuously. I was हाँ writing for her. तो इसमें Bela you ji, just what you were writing? giving gratitude to them or are you मतलब आप सब कुछ के लिए gratitude दे रहे हैं या just giving gratitude for them? Only like for them, what you whatever wrote. doing for you. Like, you know, I was writing, I'm very thankful to them. They are cooking such good food for me. They are taking care of my family. They are looking after my family. I'm so grateful to them. And they really, when I was not well, they were really taking care of me. Matlab all ऐसे For like, I them, was whatever writing they have done till now मतलब आपको हाँ, याद हाँ। करके उनके लिए gratitude लिखना है no they are very honest maybe she's very honest and उसका नाम हाँ लिख हाँ के ठीक बात है like हाँ, I Yes. also do it for my maid when you know हो जाता है you know इन लोग के साथ तो फिर what I do is I write almost every day I make it a point to write one for her at least हाँ No, मैं for भी being so सुबह का जो honest, for being gratitude so लिखती हूँ हाँ एक gratitude मैं उनका लिखती हूँ सुबह में रोज डेली बिल्कुल बिल्कुल and you can see the change Yeah. yes Nita ji thank you Bela ji पायल जी, हाय पायल जी. हाँ जी ये thank- मिरर टॉक का जब भी मैं रेडी होती हूँ तो आई ऑलवेज से कि आई एम लुकिंग स्लिम एंड ट्रिम और फिर मैं हाँ। जब भी बाहर जाती हूँ तो आई ऑलवेज गेट कॉम्प्लीमेंट कि तुम पतली हो गई हो. तो मैं अरे वाह। फ्रेंड ऑलवेज कंप्लेन कि पता नहीं देखो हर कोई कैसे बोल देते कि यू आर लुकिंग स्लिम एंड ट्रिम. मैं बोली हाँ। जब मैं निकलती हूँ तो बोल के ही निकलती हूँ. absolutely that's the way to go about lovely Even magnificent outcomes work very well. मतलब मेरा तो बहुत बार वर्क कर रहा है. Touch wood. it does ये मिरर वर्क रियली इट वर्क्स. मिरर टॉक. yeah this is very important अगर किसी में self confidence कम है you know you should do mirror work talk every day and love yourself अंदर ही प्यार नहीं है तो बाहर किसी से कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा how we are behaving outside is what is inside us you know हम लोग को लग रहा है सामने वाले के कारण मेरा ऐसा बिहेवियर हो रहा है but it is inside us that is what is coming out that's very important I have a sharing, Payal. yes Kalanji Oh. yes. बोलिए. वो मेरी बेटी का वो कार्ड वाला इश्यू सॉल्व हो गया. wow कार्ड really. Very good. Thank you so much. Congratulations. so much. The bank said you Congratulations, don't have to Kalaji. pay. Thank you so much. and God good bless wishes her. to her. yes So, God bless her also Yeah, I told her to write magnificent outcome लिखने बोले थे हम. हाँ. Now the bank has said you don't have to pay. Hmm. They got a message. कुछ उनका ये है, some server से आता है. Then हाँ. they give permission. Then only वो जाता है तो उनके पास वो आया ही नहीं. oh इसलिए they said you don't have to pay. We know that you have not done it करके उन्होंने बोल दिया. lovely So, so and lot of for- acknowledgements and also to Ankit ji Ankit ji, yeah, we have a saying thanks to I Ankit. was also thinking of him only. नहीं. I was thinking of him. yeah so I don't know if आपकी he's here blessings today. से
कहाँ से It आवाज is आ रहा है thanks to Ankit ji for his idea also. So पता नहीं आज आए हैं क्या? I don't know. I can't see him right now. 3 days वो शायद नहीं बोले आएंगे थे ना बोले थे। 2-3 दिन हाँ, नहीं बोले आ थे। पाएंगे. Yeah, he told 2-3 दिन नहीं I आएंगे. will convey this message to him. Congratulations, Yeah. Kala aunty. Thank you. Lovely. Thank you. That's really a very Thank good news. Rhonda We Brain can and see thanks that to happiness on your magnificent face, outcome. Kala aunty. Yeah. So someone else was also saying something. Sarika ji was here, no? कुछ बोल रहे थे क्या? Okay. So everyone else who else did the mirror mirror practice, magic mirror. I'm also doing every day, You've been doing every day. Lovely. early in the morning when I get up and do my brush and all. Absolutely, that's the Yeah, best even time. I do in the Yeah. bathroom mirror plus in my room one also. Yes. I do it. पहले क्या करते थे बस जल्दी जल्दी देखते भी नहीं थे अपना हाँ। ब्रश किया वगैरह you used to take shower and then you're out. Now I make it a point to look myself into the mirror, you know. And कितनी बार होता है अगर हम लोग से कोई गलती भी हो जाती है, we generally, you know, like we keep criticizing ourselves only. अरे मेरे से ऐसी गलती क्यों हो गई? Why did I say this? Or why did I do this? ये मेरे से कैसे हो गया? So you just go to the mirror. Now what I do is I do mirror talk. I just stand in front of mirror. I don't know, it is okay. You are also a human. It just happens. You know, you learn also, and when you talk to yourself, बहुत कुछ बाहर आता है. Your emotions, and you actually understand it is okay to, and वो mistake realize भी होते हैं. So that is very important. You know, because you can't, at times you can't confess to anyone else but the person in the mirror. You know, the best person will always be there with you and for you. And you get a lot of answers also. Ask that person question and you get answers yourself. अगर कहीं confuse हो, keep asking. तो भी बहुत जगह कुछ answers मिल जाते हैं. So try that, and it is also a practice. Yes, Archana ji. मुझे ये बोलना था जैसे कई बार लाइक टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट हम लोग बहुत बातें नजरअंदाज करते रहते हैं. वी अवॉइड थिंग्स, लेकिन फिर भी सामने वाला आपके कुछ कुछ पोक करता रहेगा तो अल्टीमेटली कभी ना कभी तो बाहर आता ही है ना. तो तो उसके देन लिए तो वो रिलीज वर्क था ना, पेपर में सब लिख दीजिए, फाड़ के फेंक दीजिए. अच्छा, बर्न कर दीजिए, फाड़ के फेंक दीजिए, you know, flush it out. Talk to yourself in the mirror. If someone has told you something, you know, सब बाहर निकाल दो, अंदर मत रखिए. And उस समय रिएक्ट मत करिए. रिएक्ट करने से if you think क्या होगा, सामने से और रिएक्शंस आएंगे, right? तो will it, मतलब keep asking yourself question. अगर मैं उनको इसका जवाब देती तो क्या होता? अगर आपको लग रहा है सामने वाला अगर आपको उसको अच्छे से लेगा, आपको समझेगा, well and good. बट अगर आपको लग रहा है वहां से भी आंसर बैक आएगा, देन यू अनदर आंसर एंड नो पॉइंट. गिव एन एंड देयर एंड देन ओनली. तो इवन इफ इट इज नॉट समवन इन द फैमिली, कोई आउटसाइडर है, सपोज मेरा कोई नेबर ही है, वो बिना मतलब पोक कर ही रहा है आपको, हाँ, इवन व्हेन यू आप आर वहां से हट अवॉइडिंग. जाओ ना. अगर नेबर वगैरह है तब तो और बॉदर ही नहीं करना है. व्हाई आर यू लेटिंग एनीवन एल्स, यू नो, स्पॉइल योर मूड और योर इमोशन. किसी और के हाथ में अपना रिमोट देना ही क्यों है? या इसका मतलब तो आपने उसको अलाउ कर दिया. आप ये बोलोगे मैं इरिटेट होंगी, मैं गुस्से में होंगी एंड मैं यू नो लो फील करूंगी. व्हाई? हु इज दैट पर्सन? नो वन. वी कैन नॉट चेंज एनीवन. सब अलग हैं, वो गलत भी नहीं हो सकते हैं, वो उनका नेचर है, व्हाटएवर इट इज. We can change ourselves only. We can bring change to ourselves. आप वहां से, if you cannot bear it, वहां से शिफ्ट हो जाइए, मत सुनिए. Easy way out. थैंक यू. मन ही मन में गाना गाने लग जाइए. If you're fond of music, start singing, start saying thank you for making me so patient. And हमेशा मैंने बोला ना, ऐसा हो तो बोला he's emotionally unwell. At times ऐसा होता है कि other person must be going through a lot of things, you know, emotions in his or her life. We are not aware. So let it be. सोच लीजिए इमोशनल अनस्टेबल है थोड़ा. It's okay. God bless you. In fact, bless that person. God bless you. You will see the change in that person. Yes. Anyone else? आज बहुत जन आ गए. अरे वाह, आज लास्ट है, कल लास्ट है हम लोग का.
Okay, so who would like to read today? आज हम लोग का है Remember the Magic. I can. I would like to somebody read. else. Okay, प्रीति. अर्चना जी आपने कल पढ़ा था ना शायद? हाँ. नहीं, कोई नहीं? बात नहीं, let her read. Okay, नीतू जी ने पढ़ा था शायद ना? नीतू read yesterday. नीतू जी yes. ये सेशन में मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा है। Want to? I agree. You want to? You can. आज और कल. Yeah. Okay, okay, no See, I have problem. read thrice, so whoever else wants, they can go ahead. Yes. Gigi, you want to read? You read. It's fine. नहीं नहीं I've नहीं, you read. read. Sure? You read, you read. अभी have Even I tomorrow. want to read. मैंने तो शायद एक बार भी नहीं read किया है. Okay. No, is Anushka, Neeta, you read. Okay. I'll just let her read. All right, Neeta ji will read today, and we have tomorrow as well. Yeah. हम लोग कल भी पढ़ सकते हैं. Okay. सबकी कॉफी चाय बन रहा है ना? लेके बैठे हैं। ग्रीन टी तैयार है। हाँ, ग्रीन टी रेडी है. अभी लेके बैठना है, इसके बाद सेशन के बाद का पीना है. नहीं, अभी session साथ के में बाद- लेके बैठ जाओ। साथ में अभी बनाया लेके नहीं. बैठे हैं। हम तो लेके Cheers बैठे to all. हैं। Cheers to all. Cheers to all. Cheers to I'll just Ranavan, get the a glass of magic water. session. Cheers to everyone. Cheers to Payal especially. All right. So apart from Neeta ji, बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए. And Neeta ji, please आप अपने आप को unmute करिए. I'm muting all. Let us finish reading, then we can interact a little more. Yeah. So today is our day 28, and here हम लोग कैसे इसको याद कर सकते हैं. Remember the magic, whatever we have practiced. तो कैसे याद कर सकते हैं, कैसे incorporate कर सकते हैं, कैसे structure बना सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग को पिक्चर में दिख रहा है the sky is totally dark and there is one, I think this moon and all, stars all around. So what does this depict? And we can see a lighted path also. यहाँ पे एक रास्ता दिख रहा है जो बहुत ही illuminated है, बहुत ही रोशनी है वहाँ पे. तो हो सकता है कि अभी अगर हम लोग डार्कनेस में है, ऑल अराउंड डार्कनेस, जब तक इस मैजिक बुक में नहीं आए थे, मे बी हमारी दुनिया पूरी ऐसे अंधेरे में थी. और अब इसके 27 प्रैक्टिसेस के बाद, 27 प्रैक्टिसेस के बाद अब हम लोग ये रोशन सितारा हो गए हैं एकदम. यू नो दिस मून वी हैव डन. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करे होंगे तो हम लोग मून में हो गए, उतने रोशन हो गए हैं. कम प्रैक्टिस किए होंगे तो मे बी दिस लिटिल स्टार्स राइट नाउ. तो हम लोग ये मून भी बन सकते हैं. इतने रोशन हो गए हैं कि हम लोग ने देखिए एक पाथ ही बना दिया है. अब इससे क्या होगा, मून क्या करता है, अंधेरे में कितने और को भी रोशन करता है, रोशनी देता है ना. तो हम लोग को अपने आप को इतना रोशन कर देना है कि जो अंधेरे में है हम लोग उनके लाइफ में भी रोशनी ला सकते हैं. और अगर इतना ब्राइट मून नहीं बने, इतने प्रैक्टिस नहीं बने हैं, मे बी अ स्मॉल स्टार और मे बी अ दिया, राइट. एंड उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम लोग और बड़े सितारे बन जाएंगे. यस. That's the thing with magic. You have got to know it's still there, still here, all around us, or it just says invisible for you. Charles D. Lind, B. 1951, writer and Celtic folk musician. Every day is unique. There is no Please hold on, Neeta ji, एक मिनट. तो जैसे बोल रहे हैं, that's the thing with magic. You've got to know it's still here. मतलब वो हम लोग को दिखाई नहीं देता है क्योंकि it's exist in invisible realm. जैसे कि हवा हमें दिखाई नहीं देती है, हमें महसूस होती है, वैसे ये मैजिक भी दिखाई नहीं दे रही है, बट ये भरपूर है. हमें खाली देखने की जरूरत है. और हम इसे कैसे देख सकते हैं, अपने प्रैक्टिस से, अपने एक्शन से, यू नो, बाय बीइंग ग्रेटफुल. तो हमें ये मैजिक अपने आप हमारी दुनिया में, जैसे अब कितनों को दिख रहा है ना मैजिक, मेरे साथ तो ये मैजिक हुआ, मेरे साथ तो ये मैजिक हुआ. ये पहले शायद दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे थे, पर मैजिक तो था ही ना, यूनिवर्स में भरपूर है, पहले भी था. कहाँ से आवाज आ रहा है? हो गया ना. रेणु अग्रवाल. Yes, Neeta ji. Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so when you remember the magic by counting yesterday's blessing, no matter how many times you do it, it will be different every time.
It's just one of the reason why Remember the Magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now or what desire you will have in the future, this is magical practice will remain the most powerful practice for every entire life. For your The entire easiest- life. हाँ, एक For your entire- every day is unique. मतलब हर दिन एक नया है. ये मत सोचिए कि अभी मेरे साथ ये बुरा हो रहा है तो कल भी होगा, परसों भी होगा, तरसों भी होगा. As I say, every day is a new day. जो कल गया, हर एक अंधेरे के बाद, after every night a day comes. वैसे ही हर अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता ही आता है. So never get bogged down by the darkness. हर दिन अलग है, हर दिन नया है. There is no day like any other day. कल जैसा बीता था आज तो वैसा नहीं बीतेगा. जरूरी तो नहीं है ना ऐसा कुछ, है ना? And हम लोग जैसा अपने दिन को बनाएंगे वैसा ही होगा. Good things that happen each day are forever different. हर दिन अलग है. आज कुछ ज्यादा अच्छा हुआ, कल उससे भी ज्यादा अच्छा हुआ, हो सकता है आज इतना अच्छा भी नहीं हुआ. So it is just, we have to take it every day. Live, उसलिए बोलते हैं ना, live in the present moment. Live every day. Live by the day. Don't think कि कल ऐसा हुआ उसको लेके भी नहीं बैठना और कल क्या होगा ये सोच के भी हमें चिंता और भय, fear में नहीं रहना है. No matter what your desires are now or what desires you will have in the future, the magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. हमें ना क्या हुआ उसके बारे में भी नहीं सोचना है, क्या ड्रीम्स है, डिजायर्स है, सोचना नहीं. अगर आज हम लोग अपने लाइफ को अगर आज हम लोग अच्छे से जी लेंगे ना विद ग्रेटिट्यूड, हम लोग का फ्यूचर अपने आप ही ठीक हो जाएगा. पास्ट के गड्ढे हम लोग ग्रेटिट्यूड दे दे के भरते जा रहे हैं हर दिन. इसीलिए जो हम लोग का आज का बीइंग है ना, इसीलिए बोलते हैं वर्क ऑन योर बीइंग. अभी हम कैसे हैं, आज हम लोग अपने आप को अगर ग्रेटिट्यूड में रखेंगे, अच्छे से रहेंगे, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाए. The easiest way to remember the blessing of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessing, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday. And as you scan, the blessing will bubble to the surface of your mind. Yes. You तो यहाँ can पे क्या start बोल रहे हैं, the easiest way to remember the blessing is of yesterday is to start by remembering. मतलब आज हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे इतने दिन से हम लोग नियामतें लिखते आ रहे हैं, दैट मींस ब्लेसिंग्स लिखते आ रहे हैं, वो तो पास्ट के हम लोग जितने लिखते आ रहे हैं. इसमें क्या होगा, आफ्टर सर्टेन डेज आपको लगेगा कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. तो इजीएस्ट वे है कि कल आपका दिन जैसा बीता ना, शुरू से द टाइम व्हेन यू वोक अप, उस टाइम से हम लोग सोचेंगे कि हाउ डिड द डे गो. अच्छा, उसमें भी हम लोग रिकलेक्ट करेंगे मेजर इवेंट्स ऑफ द मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, कि हर टाइम हर पल हमारा कैसा बीता. और उसमें भी इट शुड बी एफर्टलेस, क्योंकि हम लोग उसको स्कैन करेंगे. तो खाली स्कैन क्या करेंगे, तो ऊपर ऊपर की सतह को खाली स्कैन करेंगे. मतलब जैसे बकेट में अगर पानी है, साबुन डालते हैं तो झाग कहाँ करते हैं हम लोग, नीचे हाथ डुबा के तो नहीं ऐसे से करते हैं ना टू गेट दैट फोम. वो हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर करते हैं, वो ऊपर ऊपर ही बबल्स और जो फोम बनता है, नीचे इज टोटली लाइक डीप. तो हम लोग अगर जो चीज अच्छा नहीं हुआ उसको नहीं याद करेंगे, ऊपर ऊपर की सतह को, जिस चीज से हम लोग को खुशी मिली, विच गेव अस हैप्पीनेस, पीस, हम लोग सिर्फ जॉय, उसको याद करेंगे और उसको उसकी ही को याद करेंगे और वैसा महसूस करेंगे. Yeah. And then what we have to do, let's read. You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically? Just hold on, I can't. Receive. Did you magically Receive or receive unexpected money? Did you feel especially happy? No. Did you hear from? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email?
Did you receive a compliment, or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? तो अगर हम लोग ये सब क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या कल के दिन में ऐसा ऐसा कुछ हुआ, इतने सारे क्वेश्चंस है. व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट हैपेंड यस्टरडे? रिमेंबर व्हाट आर द गुड थिंग्स. कुछ खराब हुआ है, जैसे हम लोग मैजिक रॉक में है, हम लोग स्कैन करते हैं पूरे दिन में जो अच्छी चीज है, वैसे ही इसमें भी हम लोग को कल के बीते हुए, कल जो बीता है उसमें जो अच्छी चीज है, इट कैन बी वेरी स्मॉल. किसी फ्रेंड से बात की, उसने कोई बात हम लोग को क्लासरूम डेज की बता दी, उससे बहुत खुशी मिल गई. कल मैंने कोई खाना बनाया, कोई डिश, उसने मेरे इतना अच्छा बना कि बच्चे बहुत खुश थे, फैमिली मेंबर्स ऑल वर वेरी हैप्पी. इट कैन बी एज सिंपल एज दैट, व्हिच गिव यू रियली हैप्पी, मेड यू रियली हैप्पी. कल कोई कॉन्वर्सेशन बच्चों के साथ ऐसा हुआ, हस्बैंड के साथ ऐसी हुई, इन लॉज के साथ ऐसी हुई, जिससे आपको बहुत अच्छा लगा. ऐसे छोटी छोटी बातें को याद करना है, जरूरी नहीं है कुछ बड़ा कुछ होना होगा, जिसको सुन के याद करके आपको खुशी मिलती है. Remember the magic and list yesterday's blessing on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessing of the day. They can be small things or big things, because it's not about the size of the blessing. It's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and noted each one, simply be grateful and say the magic word for it. Thank you. Right. तो यहाँ पे लिखा है कि you can list yesterday's blessing on a computer or write them out in a journal. तो कंप्यूटर में जो लिख रहे हैं मिनरल्स, बस I always prefer to write it down. तो सरफेस में हमें खाली ढूंढना है, चाहे वो इतनी बड़ी बड़ी चीज मत ढूंढेगा और इतनी भी ज्यादा मत सोचने बैठेगा कि हाँ मुझे उसने ये बोल दिया तो मुझे बुरा लग गया. बिकॉज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, जो हमें खुशी दे रही है, जो हम लोग की ब्लेसिंग है, एंड हाउ मच ग्रेटिट्यूड यू फील फॉर ईच वन. अगर आपके स्टाफ ने, जैसे अभी भोजन बोल रहे थे, तो स्टाफ ने अगर आपको कुछ अच्छा बना कर ही दे दिया, मे बी योर लिटिल फीलिंग अनवेल, लेकिन उसने थोड़ा सा आपको खाना दे दिया, आपके फैमिली का केयर ले लिया, दैट इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग, दैट ऑल्सो गिव यू हैप्पीनेस. तो हम लोग उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं. And say the magic words for it. Thank you. When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings, or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. अब यहाँ पे देखिए मिक्स करने बोल रहा है. क्विक लिस्ट मतलब खाली पॉइंटर्स में लिख लीजिए, जरूरी नहीं है. जैसे हम लोग डेली के 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं ना, ये उसको छोड़ के जैसे बोल रहे हैं, आप उसी में इंक्लूड कर सकते हो. कुछ 10 की जगह आप 15 लिख लीजिए, है ना. तो कल का दिन का भी 5 हो गए और 10 हम लोग जो रोज नियामतें लिख रहे हैं उसका भी हो गए. हाँ, अब आप कितने जन ऐसे बोल रहे होंगे, पर उस 10 में हम लोग ऐसा भी था कि जो कल का भी लिख रहे हैं, है ना, तो वो हो जाता है शॉर्टकट. बट इट्स बेटर कि 10 पहले का कोई लिखे और अभी ये रिमेंबर द मैजिक का 5 उसमें इंक्लूड कर ले, या आप 10 है उसको अलग लिखिए, उसको अलग लिखिए. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा. There is no set number of blessing to find from yesterday, because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. तो इसमें यहाँ लिखा है कि कोई फिक्स नंबर नहीं है. हर दिन में तो जरूरी नहीं है ना कि 5 अच्छी चीजें हो या 10 अच्छी चीजें हो, तो उसका कुछ फिक्स नहीं है. When you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic. अगर हम लोग वो ब्लेसिंग ढूंढ लिए कल के में से भी, उसको निकाल लिए, तो वो हम लोग बोलते हैं ना हार्ट से ज्यादा महसूस करते हैं. इट इज ऑल अबाउट फीलिंग. तो मैजिक की दुनिया में हम लोग अपने आप ही कदम रखेंगे, एंड यू विल बी ग्रेटफुल फॉरएवर, एंड व्हाटएवर यू गेट इन लाइफ विल बी इन अबंडेंस. पायल जी, एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? यस पायल जी. हाँ, नहीं अपन ज्यादा कल के लिखते हैं ना 10 ब्लेसिंग्स में.
पहले का भी लिखते हैं, जैसे बॉडी पार्ट्स का बहुत जन बार लिख बार भी सकते लिख क्या? लेते हैं। हाँ वैसा लिखना चाहिए। ओके। हाँ जी। मैं ज्यादा यस्टरडेज के जो रहते हाँ, इसमें तो लिखा है ना थे, छाया जी, इसमें आप मिक्स भी कर सकते हैं। बहुत जन है कि भाई 10 नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम लोग 10 से ज्यादा लिखेंगे, देखिए 10 जो बोल रहे हैं ना मिनिमम लिख रहा है, हम लोग चाहे हाँ, तो 100 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, तो उसमें कल का भी आ गया। ओह ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember the magic, it was created for you. तो ये देखिए, ये हम लोग का ओपनिंग था बुक का, और क्लोजिंग भी यही है। हर चीज में खाली कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जिनके पास ये है उसे और भी भर भर के मिलेगा, जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है, जो है वो भी ले लिया जाएगा। राइट, सो दिस हम लोग को एकदम मेमोराइज कर लेना है इसको, इन लाइंस को। तो रिमेंबर द मैजिक, इट वाज क्रिएटेड फॉर यू, मतलब इट वाज क्रिएटेड फॉर ऑल ऑफ अस। ये मैजिक हम सब के लिए है, यूनिवर्स में भर भर के है, लेकिन हमें खाली ग्रेटिट्यूड से उसे हम अपने ड्रीम्स, डिजायर्स की तरफ बहुत जल्दी जा सकते हैं, है ना। किसी के लिए अगर जैसे दिन में, कभी कभी क्या होता है ना, दिन में जैसे बच्चे या हस्बैंड या इन लॉज या कोई भी हम लोग को 10 अच्छी बातें बता दे, लेकिन एक कोई गलत बात बोलते हैं, हम लोग उसी को लेके बैठ जाते हैं, है ना, वन विकेट आउट। तो उसके बारे में नहीं सोचना है, हम लोग 10 अच्छी चीजों को छोड़ के, आदत है हम लोग एक जो बोले जिससे खराब लगा उसको हम लोग दिमाग में रख के बैठ जाते हैं। तो वी डोंट हैव टू डू दैट। हम लोग को ऊपर ऊपर की सतह को याद करना है और उसके बारे में लिखना है। यस, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 28। Count your blessing, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you. Thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. 2. Remember the magic by counting the blessing of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. 3rd, as you remember each one, simply say the magic words, thank you, for it in your mind. 4th, after today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you are grateful for about yesterday, or make a shorter and more detailed list and say why you are grateful for them. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you, for the best thing that happened during the day. Thank you, Neeta ji, for reading for all of us. So first and the 5th practice are same. उसके बाद remember the magic में क्या हो रहा है, हम लोग को क्वेश्चन पूछना है, what are the good things that happened yesterday? कल क्या हुआ, अच्छी बातें जो हुई जिससे आपको खुशी मिली, वो क्या है, उसको हम लोग को ऊपर सतह को करना है, स्कैन करना है सरफेस को, और उसको याद करना है, और इसमें लिखा है उसको लिखना है। एंड एज यू रिमेंबर सिंपली से द मैजिक। जैसे हम लोग काउंट योर ब्लेसिंग्स में जब लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हैं, पर यहाँ बोल रहे हैं कल का जब हम लोग ऐसे याद कर रहे हैं, वी कैन जस्ट सिंपली से थैंक यू। एंड आफ्टर टुडे यू कैन डू दिस प्रैक्टिस एज अ रिटन लिस्ट। हम उसको लिखकर भी कर सकते हैं और लाउड आउट बोल भी सकते हैं और अपने दिमाग में भी, लेकिन मुझे लगता है बोलने से और दिमाग में रहने से वो कुछ नहीं होता है, जितना अच्छा होगा उतना हम लोग उसको अगर लिख लें। जब हम लोग काउंट योर ब्लेसिंग्स लिख ही रहे हैं, उसी में ऐड करके लिख सकते हैं। यू कैन मेक अ क्विक लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर अबाउट यस्टरडे, मतलब डिटेल में नहीं लिखना है, जस्ट इन पॉइंटर्स। और मेक अ शॉर्टर नोट और डिटेल लिस्ट। जैसे अगर आपका मन है डिटेल लिखने का तो आप डिटेल में भी लिख सकते हो, कल बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही ग्रेटफुल है तो आप उसको डिटेल में भी लिख सकते हैं। So no shortcuts, I would say it's better always to write it down. Since we have some time, let us continue your magical future. नहीं तो कल बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग यह magical future भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। So I want another reader. Chaya ji, would you like to read now? Yes, I will read. No problem. Yes. Thank you. Your magical future. मतलब अब हम लोग अपने फ्यूचर को कैसे मैजिकल बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, टेलीस्कोप, व्हाट इज इट, उससे हम लोग देख रहे हैं और अपने फ्यूचर की तरफ मतलब देख रहे हैं, और इट इज ऑल मैजिकल। तो अब हम लोग जब पूरी मैजिक प्रैक्टिस कर ली है, सब कुछ
हो गया है, हमें समझ में आ गया है, इसको हम लोग अपने फ्यूचर को अब कैसे मैजिकल बना सकते हैं। यस यस छाया जी। Yes. You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the magic, incredible life. You have Most now important. laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you are adding more floors, the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights you can reach with gratitude. And there's no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it's infinite. Yes. To तो जैसे speak. एक मिनट आती हूँ। हाँ, तो हम लोग ने अब क्या है, इतने प्रैक्टिस करके अब हम लोग ने क्या एक फाउंडेशन अपना तैयार कर लिया है ना, सब ग्रेटिट्यूड डे के। अब हम लोग को क्या करना है, रोज की प्रैक्टिस से इसमें फ्लोज ऐड करते रहने हैं। तो हम लोग जितना ग्रेटिट्यूड पे करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो वी विल रीच द स्टार्स। मतलब हम लोग इतने रोशन हो जाएंगे, हम लोग की जो ड्रीम्स डिजायर्स की तरफ है, हम लोग बहुत जल्दी उसमें पहुंच जाएंगे। सो व्हाट यू से, व्हाट यू टॉक, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट। कि अब इतना प्रैक्टिस कर लिया, अब हम अवेयर हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, है ना। तो जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, वैसा ही हम लोग अपना सोचिए फ्यूचर बना रहे हैं, क्योंकि आज जो हम लोग कर रहे हैं वही हमारा फ्यूचर बन रहा है। So now since we are aware, so how we can make it magical, and only we have laid the foundation and we can reach the stars by paying gratitude. Yes. To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven. John's Gator, 1912-1996, Professor theologian poet. Theologian poet. Okay. The ideal way to move forward from here. Yeah. To speak gratitude is courteous and pleasant. मतलब ये ऊपरी सतह है, जो बोल रहे हैं, अगर हम लोग ग्रेटिट्यूड बहुत ही ग्रेटफुल होके बोल रहे हैं, ये ऊपरी सतह है। और टू इनैक्ट ग्रेटिट्यूड इज जेनरस एंड नोबल। और अगर हम लोग उसको एक्शन में ला रहे हैं, उसके वैसे ही अकॉर्डिंगली हम लोग काम कर रहे हैं, तो इट इज बीइंग, हम लोग अब नोबल हो गए हैं, बहुत ही मतलब दिलदार बन गए हैं, थोड़े काइंड हो गए हैं। और बट टू लिव ग्रेटिट्यूड इज टू टच हेवन। लेकिन अगर हम लोग बहुत ही मतलब एवरी डे एवरी मोमेंट हम लोग ग्रेटिट्यूड की ही लाइफ अब जी रहे हैं, मतलब हम लोग को अब सोचना बोलना मतलब ये नहीं पड़ता, अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में हर एक सांस में हमारे ग्रेटिट्यूड हो गया। हर एक मोमेंट में हम लोग इतने हम्बल हो गए हैं, ग्रेटफुल हो गए हैं, थैंकफुल हो गए, हम लोग का बीइंग ही वो हो गया, मतलब हम लोग का एक नेचर ही हो गया, हम लोग ऐसे ही हैं, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। देन वी टच द हेवन, मतलब हम लोग अब वहां तक पहुंच गए। The ideal way to improve forward from here is to maintain the, नहीं change नहीं हुआ पायल जी, नहीं आया। हाँ okay, maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it. And the more deeply you feel it, the less time you will need to give to it as a guide. एक सेकेंड। So ideal way to move forward from here is maintain the foundation। जो हम लोग का जो है, यानी कि सुबह की जो blessings है, रात का जो magic rock है, ये ground मतलब foundation है, इसको हम लोग को maintain करना ही करना है। And gradually keep building on it through increasing your depth of feeling। और जो practices हैं वो अगर हम लोग रेगुलर में करते जाएंगे, तो मतलब हम लोग उसमें flows add करते रह रहे हैं अपने फाउंडेशन में। And the more you practice, the deeper you labor। जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग की फीलिंग्स उतनी ज्यादा डे बाय डे होती जाएगी। एक महीने के प्रैक्टिस में हम लोग ने देख लिया होगा कि कुछ कहीं जो नए हैं उनके फीलिंग्स जनरेट हो गई है। तो आप सोचिए, अगर रोज हम लोग इसी भाव में रहेंगे तो हम लोग का कितना अच्छा होगा, मतलब हम लोग का बीइंग ही वो हो जाएगा, right? And the less time you will need to give it, so like more deeply you feel it, the less time। मतलब अभी आपको लग रहा होगा कितना टाइम लग रहा है, ये भी लिखना है, ये भी करना है, लग रहा होगा ना बहुत कुछ करना है। लेकिन अगर हम लोग का बीइंग वो हो जाएगा ना, तो हम लोग का नेचर में हो जाएगा। अब जैसे उठ के रोज हम लोग ब्रश करते हैं, बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं, तो उसके लिए टाइम थोड़े अलग से इतना कुछ रहता है। इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ अस, बीइंग हो गया।
वैसे ही ये भी हमारा एक बीइंग नेचर में हो जाएगी। अरे उठते तुम अपने आप मुंह से निकलेगा, आपको याद नहीं करना होगा, हम लोग का वो नेचुरली आएगा, हैबिट हो गई। एज अ गाइड अब हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं? 3 days a week of remember the magic, or climbing Combining with it. combining with it with 2 other magical practices of your choosing. You should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to get better and better. For example, you might choose to remember the magic on one day, magical relationship on the second, and magic money on the third day. अब ये जो बोल रहे हैं, ये रोंडा बर्न हम लोग को और इजी वे आउट है कि आपसे अगर रोज का कुछ प्रैक्टिस नहीं होता है तो 3 days ऑफ वीक आप रिमेम्बर द मैजिक कर लीजिए, और उसके साथ कोई ना एक दिन जैसे आप मैजिक रिलेशनशिप कर लीजिए, एक दिन आप मैजिक मनी कर लीजिए वैसा। लेकिन मैं बोलूंगी ऐसा नहीं करना है, हम लोग को रोज ब्लेसिंग्स और मैजिक ड्रॉप तो करना ही है, और हम लोग रोज जितना कुछ कर सकते हैं। देखिए आपको अपने लाइफ में सबको हम लोग को देखना होगा किस एरिया में हमें ज्यादा दरकार है, हम लोग उस प्रैक्टिस को ज्यादा करेंगे। So it is, we have to make our own structure. Okay. 4 days a week of remember the magic, or incorporating it with 3 other magical practices of your choosing will maintain your gratitude and accelerate the magic. अगर 5 3 दिन days a करेंगे week, तो देखिए क्या होगा, मतलब आप नॉर्मल थोड़ा बहुत मैजिक होगा। 4 दिन करेंगे तो एक्सेलरेट करेगा, मतलब और स्पीड में हम लोग का मैजिक होगा, तो हम लोग और स्पीड में अपने ड्रीम्स डिजायर्स पूरे कर पाएंगे। अब 5 डेज प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? 5 days a week of remember the magic, or incorporating it with 4 other magical practices of your choosing will dramatically increase your happiness and the magic in every area and circumstance of your life. राइट, तो अगर 6 5 दिन करेंगे तो इन एवरी एरिया एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ योर लाइफ हम लोग सब जगह इंप्रूव करेंगे। तो अब हम लोग को चूज करना है, हम लोग को 1-2 दिन चाहिए कि थोड़े दिन के लिए चाहिए कि बहुत ज्यादा चाहिए अपनी लाइफ में। 6 or 7 days a week of remember the magic, or incorporating it with any other magical practices of your choices, and you will become the true alchemist who can turn who can turn everything into gold. Yes, तो देखिए अगर हम लोग 6-7 दिन थ्रू आउट अगर हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बाय द एंड ऑफ इट हम लोग मतलब क्या बनेंगे? ट्रू एल्केमिस्ट। एंड who is an alchemist? जिसको छुएंगे वही सोना हो जाएगा। Whatever we want we can achieve in our life. मैजिक प्रैक्टिस रिकमेंडेशंस ये मैं पढ़ लेती हूँ छाया जी। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। Okay, thank you, Payal ji. So to keep the magic continuing in the important areas of your life like happiness, health, relationships, career, money and material things. It didn't change. And material things you own, you could do the specific practices for each area once a week. अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कोई एरिया आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर पैसे की अगर आपको लग रहा है आपके काम में वगैरह ज्यादा है, करियर में या फिर रिलेशनशिप में आपका बहुत ज्यादा चैलेंजेस है अभी, तो हम लोग उसको भी स्पेसिफिकली कर सकते हैं। However, if you want to increase the magic in any area of your life, you should give more to an increased practice of gratitude for that area several days of week. मतलब अगर आप सोच रहे हो 1-2 दिन में हो जाएगा तो नहीं होगा। देखिए यहाँ बोल रहे हैं अगर आप उसमें इम्प्रूवमेंट या मैजिक देखना चाहते हो तो हमें several days a week हम लोग को करना पड़ेगा। अगर आप बीमार हैं, if you are unwell, you will want to do the magical practices for your health every day, if not multiple times in a day. हर दिन तो करना ही पड़ेगा, अगर दिन में 3-4 बार भी नहीं कर सक रहे हो, अगर आपको हेल्थ में कोई मिरेकल देखना है तो द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस कैसे हैं? तो मैंने जैसे बोला था, देखिए रोंडा बर्न ने कितना इजी हमारे लिए बना दिया है। यहाँ पे देखिए अगर रिलेशनशिप में अगर हमें कोई मिरेकल चाहिए तो कौन कौन से चैप्टर रेफर करने हैं? मैजिकल रिलेशनशिप, मैजिक डस्ट यूज करना है, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप करना है, द मैजिक वॉन्ड करना है, द मैजिक मिरर करना है एंड रिमेंबर द मैजिक करना है। मतलब वो हमें चैप्टर्स भी बता दिए हैं आपको कौन कौन से प्रैक्टिसेस करने हैं अगर आपको रिलेशनशिप में मिरेकल चाहिए। तो हेल्थ में चाहिए तो मैजिक हेल्थ, मैजिक डस्ट, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, द मैजिक वॉन्ड एंड रिमेंबर द मैजिक। हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे
दिस मैजिक वॉन्ड आप देखिए बहुत में आ रहे हैं, एंड दिस मैजिक डस्ट ऑल्सो। मनी के एरिया में चाहिए तो मैजिक मनी, द मनी मैग्नेट, द मैजिक चेक, द मैजिक वॉन्ड, द मैजिक मिरर एंड रिमेंबर द मैजिक। करियर में चाहिए तो वर्क्स लाइक मैजिक, मैजिक डस्ट, मैजिक वॉन्ड, द मैजिक मिरर एंड रिमेंबर द मैजिक। और आपके सारे ड्रीम्स, डिजायर्स जो हैं, तब वापस से मैजिक डस्ट, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू बिफोर योर वेरी आईज, जो सामने दिखे मिले उसी के लिए शुक्राना। द मैजिक वॉन्ड, द मैजिक मिरर एंड रिमेंबर द मैजिक। और उसके बाद है योर मैजिक रॉक। यू कैन मेक द मैजिक रॉक प्रैक्टिस अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ बाय कंटिन्यूइंग टू कीप योर मैजिक रॉक बाय योर बेड साइड and using the time you get into bed as your reminder to be grateful for the best thing that happened that day. You can also carry your magic rock with you in your pocket, and every time you touch it, use it as your reminder to think of something you are grateful for. अगर आप उसको अपने साथ, जैसे अगर बाहर जा रहे हैं तो भी आप कैरी कर सकते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो भी कैरी कर सकते हैं, और जब जब उसको छुए आपको वो हमेशा रिमाइंड कराता रहेगा कि अरे मुझे किस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, तब आप उस चीज को पकड़ के कभी भी कहीं भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। इसके बाद है द मैजिक डस्ट। यू कैन ऑल्सो मेक द मैजिक डस्ट एवरीवन प्रैक्टिस अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। ये मैजिक डस्ट भी हम लोग हर दिन कहीं ना कहीं हर चीज में स्प्रिंकल कर सकते हैं। अदर देन स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट ओवर द पीपल हु सर्व यू, देयर आर मेनी मोर वेज टू कंटिन्यू यूजिंग द प्रैक्टिस। यू कैन स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ओवर एवरीवन एंड एवरीथिंग, हर लोगों के ऊपर भी, हर चीज के ऊपर भी। If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. अगर आपके बॉस, अगर आपको लग रहा है थोड़े से इरिटेटेड है, ग्रम्पी है, गुस्से में है, आप उन पे कर सकते हैं। You can sprinkle magic dust over a family member or loved one if they are in a bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their life. अगर आपको कोई फैमिली मेंबर लग रहा है अभी गुस्से में है, आप उन पे कर सकते हैं। खराब मूड में है, लो फील कर रहा है, तो भी आप उस पे कर सकते हैं। अगर आप किसी बाहर में जा रहे हैं, कोई लोग आपको ऐसा दिख रहा है जिनको आपको लगता है कि इसके लाइफ में मैजिक की दरकार है, आप उनके ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एड मैजिक wherever you go and sprinkle magic dust over babies and children, over your plants or garden, your food and drinks, your computer or your mail before you open them. See, your wallet, car, your phone before you take or make a phone call. आप कहीं पे फोन मिलाने वाले हो उसके पहले भी आप कर सकते हो, जस्ट इमेजिन। और ओवर एनी सर्कमस्टांस दैट यू वांट टू इंप्रूव, द मेनी एप्लीकेशंस ऑफ मैजिक डस्ट आर लिमिटेड ओनली बाय योर इमेजिनेशन। मतलब हम लोग हर जगह हर चीज में यूज कर सकते हैं, वो हम लोग का लिमिटेशन है कि हम लोग यहाँ नहीं कर सकते हैं। जैसे छाया जी बोलती हैं वो हर चीज में करते हैं। बच्चे सुबह सो रहे हैं, आप उनके रूम में जाके आप बच्चों के ऊपर भी मैजिक डस्ट कर सकते हैं, एंड यू ब्लेस देम, राइट? तो वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इट इज दैट पावरफुल एंड दैट गुड एंड दैट यूजफुल। यस, तो हम लोग कल उसको करेंगे, द मैजिक नेवर एंड्स। पायल जी, किसी के ऊपर अगर सीक्रेटली मैजिक डस्ट करना है तो किसे करना है? हाथ से मत करिए ना, खाली आप मन ही मन में बोलिए ब्लेसिंग जो देना है दीजिए, और आपको जैसे मैंने बताया था ना, एक बार ऐसे विंक कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। ओके, थैंक यू। तो हम लोग को ये जादू को छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के रखना है। और लाइफ में हमेशा बोलते हैं हर चीज को ना ओपन करके नहीं रखना चाहिए, कि जैसे बोलते हैं ना, टू मेनी फोल्डर्स आर ओपन। कंप्यूटर में भी या फोन पे, जैसे मैंने पहले भी शायद बताया, वो हैंग होता है। अगर ऐसा कुछ है, किसी से रिलेशनशिप में है, आपके काम में है, किसी के साथ भी है, उसको खत्म करना चाहिए, उसको हर चीज को फिनिश करना चाहिए, आधे में नहीं छोड़ना चाहिए, राइट? किसी को कुछ बोलना है, कुछ भी सॉर्ट आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, जस्ट क्लोज द चैप्टर, क्लोज दैट फोल्डर वन बाय वन। जितना लाइफ इजी रखेंगे उतना हम लोग के लिए अच्छा होगा। ब्लैक बोर्ड में बहुत कुछ भर के नहीं रखना है, इरेज करते रहेंगे, इरेज करते रहेंगे, तभी तो उसमें नया कुछ लिख पाएंगे ना, नहीं तो हम लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाउ for giving me opportunity to read. Thank you Neeta ji for reading. I'm seeing you मतलब towards the end of the session, I'm seeing you for the first time. And thank you to Gigi and Preeti also. They let me alone. Oh, We all are three sisters. We are three sisters. oh, that's nice. I didn't know. Rao smiles so well. सब smiling है. Thank you. You know. Yes, Meetu ji, you want to ask any question? हाँ, पायल जी, इसमें जैसे 6 तरह के टॉपिक्स लिखे हुए हैं, बहुत इजी कर दिया है टास्क हमारे लिए नॉर्दर्न बर्न ने। तो ये जो 7th डे को हम लोग अपना जो मतलब अलग से ग्रेटिट्यूड देना है उसको रिपीट कर सकते हैं।
जैसे मुझे अच्छा लगा, ये भी मैंने day 1, day 2, day 3 कर दिया था इसको। से फॉर एक दिन अगर मंडे को मैं अगर रिलेशनशिप लेती हूँ, ट्यूसडे को मैं हेल्थ लेती हूँ, फिर मनी, फिर करियर, इस तरह से करके। तो 6 टॉपिक्स है। 7th में तो फिर वापस से वो डस्ट ही आ रहा है। हाँ, नहीं ये तो बता रहे हैं कि अगर आपको कौन से एरिया में आपको क्या चाहिए, जिस एरिया में आपको जैसे फॉलो करना है, अगर आपको रिलेशनशिप में चाहिए कुछ मैजिक मिरेकल चाहिए तो कौन कौन से चैप्टर्स है जो आपको फॉलो करना है। नहीं, ओवरऑल अगर चाहिए लाइक एज अ होल कि सब कुछ ठीक है फिर भी सब ठीक रहता रहे, तो आप हम लोग को तो पता ही है, फिर सब एरिया में आपको जो प्रैक्टिस करना है कि वो सब करिए। अब रिलेशनशिप में अगर आपका सब ठीक ही चल रहा है तो खाली जस्ट राइट ग्रेटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर द रिलेशनशिप, दैट्स इट। वो फर्स्ट वाला था ना मैजिक रिलेशनशिप वाला, बस वो वाला करना है। अगर आपको कोई हील करना है देन यू गो टू द चैप्टर, तब फिर जितने भी रिलेशनशिप में है ना सबको प्रैक्टिस करिए। अच्छा, मनी में चाहिए तो फिर उसके लिए वैसे है, करियर में चाहिए, हेल्थ में चाहिए, तो मतलब वो बहुत शॉर्टकट बता रही है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन कौन सा चैप्टर फॉलो करना। शी हैज टोल्ड अस वेरी नाइसली कि अगर आपको इस एरिया में चाहिए दीज आर द चैप्टर्स टू फॉलो। आप इनको रीड करिए और इनके प्रैक्टिसेस ज्यादा कर दीजिए, है ना, चाहे वो करियर है, हेल्थ है, मनी है, जिस एरिया में भी है। ओके, थैंक यू। So it is very, that's why I say it's better to have this book with us, वो PDF खोल के I'm telling you नहीं होगा, और फिर वो नहीं होता है। आधा याद रहेगा, और ये रहेगा तो just open that chapter, अच्छा आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा। अब तो जैसे करते करते याद हो गया होगा, लेकिन जिनको जो नए हैं, जैसे आप क्या करोगे, ओपन दैट चैप्टर, उसकी जो प्रैक्टिसेस है वो कर लीजिए, इजी हो जाएगा। अच्छा पायल जी, एक चीज पूछना था फॉर रिलेशनशिप, इसमें मैजिक मिरर एंड रिमेम्बर द मैजिक, ये जो लास्ट दो है इसको कैसे रिलेशनशिप में हेल्पफुल रहेगा? जब तक अपने साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा ना, वो दूसरे पे भी अच्छा इफेक्ट नहीं करेगा। मे बी रिमेम्बर द मैजिक, अपने आप को बोल रहे हैं, जो भी बोला, हो सकता है कल उसने कुछ बोला आपको बुरा लगा, सेल्फ टॉक टू द मिरर, उसको खत्म करो और अपने साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करो। मे बी यू थिंक द अदर पर्सन इज नॉट रिस्पेक्टिंग यू, तो वो क्या होता है ना, जब हम लोग खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, कहीं और से भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो इट इज लाइक वर्किंग ऑन योरसेल्फ फर्स्ट, एंड मिरर इज योर whatever is the grievances या जो भी है, I'll talk to the mirror and then वो निकालना है बाहर, that is the thing to heal the निकालना भी नहीं है, ग्रेटफुल फॉर द पर्सन, फॉर व्हाट यू आर। हो सकता है ना, जब रिलेशनशिप में कुछ होता है तो वो हमेशा तो सामने वाले की गलती नहीं होती ना, हमारी तरफ से भी तो होता है कुछ। We can be grateful for the person, for ourselves, to remember the magic में यही है, mirror work you are saying ना। हाँ, and remember the magic, तो ये तो जो previous कल उनके साथ कुछ अच्छा हुआ होगा, कल उनके साथ कुछ अच्छा हुआ होगा, और जो भी चीज के लिए एक्चुअली हम लोग को सिर्फ ग्रेटिट्यूड देना है, तो क्या होता है ना, वो चीज खत्म हो जाती है। थिंक ऑफ द एनीथिंग दैट हैपेंड यस्टरडे व्हिच इज गिविंग यू रियली हैप्पीनेस, तो वो करवाहट खत्म हो जाता है ना। वी बोथ कैन नॉट बी टुगेदर, कंप्लेन एंड ग्रेटिट्यूड कैन नॉट स्टे टुगेदर। तो इफ यू आर इन ग्रेटिट्यूड तो वो कंप्लेन खत्म हो जाता है। तो कितने जन सोचते हैं ना प्रैक्टिसेस हो गया, लास्ट का इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं या पढ़ते ही नहीं है, बट दिस इज वेरी यूजफुल एंड बहुत पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा बुक का जिस्ट बहुत अच्छे से बता देते हैं, हाउ टू फॉलो, वही तो जानना है ना, हाउ टू फॉलो, तो ये एंड में आता है। सो डोंट जस्ट रश अप, उसको भी अच्छे से रीड करिएगा एक बार, यू विल गेट टू नो हाउ टू मेक योर ओन स्ट्रक्चर। एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? पायल मैम, यस, नहीं शालिनी, ये मैजिक डस्ट के लिए एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे मैं इसको रोज सुबह फॉलो करती हूँ आफ्टर राइटिंग माय ब्लेसिंग्स, तो अब जैसे मैं ये दूर से ही सबके ऊपर, मतलब अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर, पीपल हु आर वर्किंग फॉर मी, ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड द इक्विपमेंट इन द ऑफिस, सब के ऊपर मैं दूर से करती हूँ, तो इज इट इफेक्टिव अगर मैं दूर से सबके ऊपर करती हूँ तो? हाँ, अगर आपके पास हैं तब तो आप उनको देख के जैसे उनपे कर रहे हो, है ना, लेकिन जैसे अगर कोई दूर हैं, आप उनके पास अभी जा नहीं रहे हो, तो आप उनको इमेजिन कर रहे हो ना, और फिर उनको एक तरह से दूर से ब्लेसिंग दे रहे हो। ब्लेसिंग तो कोई, अगर आप मम्मी मेरी माँ घर में बैठ के भी मेरे को देगी तो इट विल वर्क। वो आई कैन डू दैट एवरी डे ना, तो जैसे इट वर्क्स। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज से एक तो ये सबको हम लोग ये भी कर लेंगे, जो पहले नहीं करते थे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे। whenever we meet our elders or any elders, take blessings,
बहुत बहुत काम आता है। हम लोग को लगता है हाउ विल देयर ब्लेसिंग हेल्प अस, बट इट कैन डू वंडर्स। बच्चों में भी ये चीज जरूर लाना चाहिए, एंड हमें भी whenever we get the opportunity we must take blessings from our elders. मैंने एक दो जन का मैंने फैमिली में किसी का सुना है, the life change took a full U-turn, because ailing father-in-law, he was an ailing father-in-law, मतलब बहुत बीमार थे, तो मतलब बहू ने इतनी उनकी सेवा की, मतलब every day he used to give blessing, and they were like not very well off, तो उनको था कि बस ठीक है blessing दे रहे हैं, and he used to give it with all his heart. लेकिन जो उन्होंने blessing दिया, then he left. Now they are like, I can't tell you how flourishing they are. तो उनका वो blessings था, last moment में बोले कि मैं बोलता हूँ तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा, and actually it all happened. So blessing of your elders is very, very important. मन से. Yeah. Yes, I would like to say my children are due to blessings of my grandmom-in-law. Absolutely. मतलब एक बार एक टाइम था, मैंने अपने ग्रैंडफादर इन लॉ का एक फोटो बनाया था, ही इज पास्ड अवे लॉन्ग बैक, तो माँ के लिए लेकर आई। माँ ने जब फोटो देखा, मतलब उनके आंख में आंसू आए दादाजी के फोटो को देखकर, एंड ही सेड, मैं कब, मतलब मारवाड़ी में उन्होंने बोला, मैं कब से अपना बोल रही हूँ कि आप छोरी की बात सुन लो, आप सुन नहीं रहे हो। Wow. And within 6 months I conceived. Wow, lovely. See, that's the part. So we should not, blessings के लिए हम लोग को कभी ये नहीं सोचना चाहिए ले कि नहीं ले कि क्या नहीं, जरूर करना चाहिए, जरूर, no matter whoever the person is. अनम्यूट कर दिया, अब अनम्यूट कर। हाँ, अब बोलिए। कुछ बोलना है क्या? हम लोग फूड को कैसे ब्लेसिंग देते हैं? फूड को Whenever, anything that we drink. तो शेयर किया था ना बहुत अच्छे से बच्चों को, जब हम लोग, अगर हम लोग उसको बॉर्नविटा चीनी मिक्स कर रहे हैं, और अगर उसमें हम लोग बोल रहे हैं गॉड शी इज बिकम सो नॉटी, या पढ़ती नहीं है, रात भर तो जगती है, पता नहीं कब पढ़ती होगी, एंड देन वी गिव दैट मिल्क टू द चाइल्ड, नेगेटिव एनर्जी इन दैट मिल्क, एंड द पर्सन द चाइल्ड इज हैविंग, नॉट टू डू दैट, उसमें हमेशा ब्लेसिंग देना। ब्लेसिंग क्या देना है? माय चाइल्ड इज अ ब्यूटीफुल सोल, अ वेरी हैप्पी सोल, very intelligent, respects elders, बहुत अच्छा कर रही है, best child, and then give. This is like giving blessing to the child. Then have, अब हम खुद के लिए खा रहे हैं, food is like इसमें all the positive energy, like मैं I am a God's blessed child, कुछ भी बोलो, I am a soulful person, a very happy soul, happy person. तो वैसे करके उसमें जो भी आपको बोलना है अपने लिए, and then when you are eating, the food is healing me, it is nourishing me and my body, immense happiness. Thank you to food, thank you God for providing me food, and then have. मतलब जैसे टीवी देखते हुए कुछ नेगेटिव सोचते हुए, नेगेटिव सुनते हुए, don't put the thing in your mouth. All negativity is going through the food inside our body. इसीलिए बोलते हैं ना, टीवी देखते हुए क्यों नहीं खाना चाहिए, अच्छा बुरा सब होता है ना, वी कांट स्टॉप। तो जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जी उसके साथ जा रहा है। पॉजिटिव भी कुछ होता है, देखते हैं, लेकिन पता नहीं ना कब कौन क्या देख रहा है। बच्चों के लिए जनरली इसलिए हम लोग बोलते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोई भी कंप्लेन लेके डाइनिंग टेबल में, इफ होल फैमिली इज ईटिंग टुगेदर, तो एक दूसरे का कंप्लेन करते हुए वी शुड नॉट ईट, हैप्पी टॉक एंड देन ईट। इसलिए वाटर में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, Monica ji. Payal ji, अपने gratitude, the ones who have passed away, we can give to them also, isn't it? Yes. Blessings जो morning में लिखते हो ना, उसमें आप बिल्कुल enjoy कर सकते हो। Thank you. Thank you. So food and water को तो जैसे मैं बोलूँगी कभी भी ignore, avoid नहीं करना है। Every time we must do it. Because बोलते हैं जो बाहर वो था ना उस चैप्टर में, जो बाहर वही अंदर। मैं खाना खाने बैठती हूँ पायल। हाँ जी। यस छाया जी। हाँ नहीं आप बोलिए ना, मैं बोलती हूँ। कोई नहीं आप बोलो। नहीं मैं बोल रही थी खाना खाने बैठती हूँ तो मैं जो किसान उसको उगा रहे उनको धन्यवाद देती हूँ, जो बना रहे उनको धन्यवाद देती हूँ, जो ला रहे बेच रहे उनको धन्यवाद देती हूँ, धरती माता को धन्यवाद देती हूँ। तो ये चलता है ना ऐसे। ये भी हम लोग ग्रेटफुल हो रहे हैं। वर्क्स लाइक मैजिक, मतलब जो हैं, जैसे आइंस्टाइन करते थे, कितने जन इन्वॉल्व हैं, इन सबको याद करके
लेकिन उसमें जैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन जैसे हम लोग चाहते हैं, अगर हम लोग कुछ बन जाए तो हम लोग को आई एम वेरी आई एम एट पीस, आई एम वेरी काम, वैसे करके फिर करना चाहिए, तो इट हैज एन इफेक्ट, राइट? जो हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं वही तो हम लोग का अंदर जा रहा है, वही हम लोग बन रहे हैं। Any other question? Tomorrow is our last. किसी का कॉफी वगैरह कुछ दिख ही नहीं रहा है। Coffee. No one is Cheers. having मेरा तो Cheers. Yes. yes. To Cheers, Rhonda cheers. Byrne, to the Magic Book, And to the करते Payal ji. करते फिनिश And हो to गया the Payal And to ji. the Payal ji. मेरा finish to हो all गया। the Payal ji participants. and all for the being here. all the मैंने भी participants. पी लिया, Absolutely. ओवर हो गया। As हो in गया। everyone's life. And this is not the end, I would say this is the beginning. This is the beginning of a True. new journey, right? This is the beginning of a new journey. So, And do Payal, it, magic. Payal ji, we are looking forward to see you very soon again. Absolutely. Power also. Power. Absolutely. I want to do power. I've done this third time. Every time हमको कुछ नया ही सीख रहे हैं, पता है? बिल्कुल, I was about to say this, Priyanka. We should always be a learner. In fact, मैं कराने के बाद भी मुझे लग रहा है मैं हर बार कुछ तो नया ही बता रही हूँ और मैं खुद भी कुछ नया सीख रही हूँ. And we should always be a learner. वो learner instinct ना कभी खत्म नहीं होना चाहिए. Be it of any age. हम पहले वाले फर्स्ट नोट को ना चेक कर रहे हैं कि आपने ये बोला था, अरे ये तो डिफरेंट है, ये चीज पहले तो नहीं थी। फिर सेकंड क्लास के देखे, पर ये चीज डिफरेंट है यार, अरे मेरा भी सेकंड टाइम होगा फिनिश हुआ, बट अभी भी मेरे को लग रहा है इसमें क्या था, इसमें क्या था, पूछ लेती हूँ। Always learn. वो learner instinct कभी मरने मत देना. जैसे बोलते हैं ना, always be a learner throughout our life till end. आज आप सोचो, I salute to Kala ji and Chaya ji. मतलब हम लोग इस एज में भी they are coming and learning something new ना. तो ऐसा ही रहना चाहिए till end. We should always learn. Always. रेनू जी जो लास्ट टाइम थे वो भी कितना These are lessons which we have never learned before. We have never come across. Thank you. जब कोई gift दे दिया, कुछ काम कर दिया, we say thank you. But to everything that we are using and to the nature and everything, ये तो कभी सोचा ही नहीं था. Only after your class, और इन सबको भी देना चाहिए, actually देना चाहिए, but we never came across our mind. ऐसा मुझे लगता है कि पहले सब वो मंत्र या पूजा करके एक तरह से ग्रेटिट्यूड ही दे रहे थे, but we could not understand the meaning of it. But now we understand better क्योंकि बहुत ही simple way में she has written and explained to us what is gratitude. We have found a way to find happiness. That is it. And वो किसी हम लोग को और पे डिपेंड नहीं होना अपनी खुशी के लिए कि सामने वाला मेरे लिए अच्छा करेगा तब मैं खुश हूँ. It is within us. It is within us. Happiness is within us and we have to find our own happiness. Why shall we be dependent on others? कि वो ऐसा कुछ करेंगे the way I want it and then only I'll be happy and satisfied in life. No. We have to find our own happiness. This session gives me happiness. Magic book gives me happiness. Go for it. कुछ और happiness देता है. Go for it. कोई और बुक, कोई और सेशन, जहाँ खुशी मिले बहुत. खुद खुश रहेंगे तो हम लोग सबको खुश रख पाएंगे. अपने बच्चों को खुश रख पाएंगे, अपने फैमिली को. It's that way. It's always very important. I learned French. At this ऐसे लग रहा था क्या जरूरत है, but I wanted to. I went and I learned. अब वो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. There is no end to learning. Otherwise लगता है ना अभी स्टेज में जाके क्या सीखेंगे? No. Every time. Why to kill that child in you? Why to kill that passion and interest in you? Every time. Find your bliss. इसको बोलते हैं हीरो बुक इज ऑल अबाउट फाइंडिंग योर ब्लिस, जिससे हमें खुशी मिले. देन ओनली वी कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ. पायल, तुम्हारे अंदर और तुम्हारी वॉइस में एक ऑरा है जो हम सबको अट्रैक्ट करता है, पता है? I always मतलब I don't know क्या चीज है जो मतलब कितनी बार जैसे हम कल क्लास नहीं किए ड्यू टू माय फास्ट. मुझे लगता है the simplicity in the voice yeah that is so much. ये कनेक्टिविटी होता है, जैसे होता है प्रियंका इज राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेशन ना. तो जो फर्स्ट में बच्चे आ जाते हैं ना, जैसे मेरे को लगता है मैं मेरी फ्रेंड की फ्रेंड ही है, बट आई टेल हर शी इज लाइक माय बेबी नाउ, क्योंकि शुरू से उसको देख रही हूँ. एंड आई रिमेम्बर द टाइम व्हेन शी केम. आई मस्ट शेयर दिस. मतलब मेरे को श्वेता बोली थी कि बहुत मुश्किल से उसको इसमें लाई, तुम ज्वाइन करके देखो. एंड शी वाज लाइक टेस्टिंग वाटर. अच्छा ठीक है, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, आई डोंट डू ऑल दिस, लेकिन मैं करके देख लेती. तुम बोल रही हो तो मैं आ जाती हूँ. एंड लुक एट हर नाउ, मतलब थर्ड टाइम and does all the practices and so much belief. I'm so proud of you. No, thank you for all the guidance you are giving us, and I'm learning every time a new thing actually from the same path.
we're learning हाँ। each time a new, मतलब पूरा. Absolutely. Same with everybody, for each one of us. Same year. Yes. इतने सेशन अटेंड करने पर हर टाइम मजा आता है कि अटेंड करना ही है अपने को. नहीं, वो तो we feel छाया जी से something, we're सीखना learning चाहिए। something different. 7th और 8th time I think, है ना छाया जी, या 7th और 8th time she is doing. 7. My God. छाया जी आप तो क्लास लेनी शुरू कर दीजिए. अच्छा पायल, I wanted to like ask one thing. हाँ। जैसे वो जो मैजिक मिरर था उसमें लाइक अपने लोग तो लाइक आई स्पीक अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस जो भी आई स्पीक अबाउट माई सेल्फ, आई एम दिस, आई एम द बेस्ट, आई एम यूनिक एंड ऑल दैट. तो इसमें जैसे डिजायर है या फिर जैसे ये 1-2 टॉपिक्स था ना, मनी है, तो ये मैजिक मिरर से कैसे सॉल्व हो? लाइक आई हैव टू स्पीक अबाउट द मनी इन फ्रंट ऑफ द मिरर. नहीं मतलब तुमको मनी में चाहिए, तुम अपने आप को तो पहले बूस्ट करेंगे ना हम लोग अपने आप को. हाउ द मैजिक मिरर विल हेल्प फॉर मनी, जैसे एक एग्जांपल में. इसमें मिरर प्रैक्टिस हर में करना है कि कॉन्फिडेंस जब तक खुद में नहीं आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे. अगर आप बोलोगे आई कांट अर्न ओनली मनी में, मतलब क्या है, यू वांट टू अर्न, यू वांट टू बी सक्सेसफुल, दैट तो हाउ That कैन means I have to say कि I am earning money, I am becoming rich. वही चीज हो गया ना, related to money. I have to say कि I am becoming. I'm a rich. money magnet, you can do it, Payal. ले ले. आपको हाँ boost हाँ करना है. किसी की बेबी का आवाज आ रहा है. So my wish list is completing ऐसे करके ना, like getting fulfilled. इसका ऐसे एग्जैक्ट मनी से रिलेटेड नहीं है. यू डू द प्रैक्टिस ऑफ मिरर मैजिक द वे इट इज रिटन. इट विल समवे. बोलते हैं ना जरूरी नहीं है हेल्थ है तो हेल्थ पे करो. अगर आपका किसी और एरिया में चैलेंज, आप यहाँ ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो, आपको पता चलेगा वो आपका. मिरर मैजिक इज लाइक यू ऑलवेज हैव टू टॉक टू योरसेल्फ. अपने आप को पहले प्यार दोगे, अपने आप में कॉन्फिडेंस लोगे, तब आप लाइफ में कुछ कर पाओगे. राइट, इट इज दैट. और जरूरी नहीं है कि खाली फिजिकली भी आपको अगर कोई पार्ट के लिए आप बहुत क्रिटिकल हो, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू हैव ब्यूटीफुल आईज, यू हैव ब्यूटीफुल हेयर, यू आर सो नाइस, यू हैव ब्यूटीफुल सोल, यू आर सो ऑनेस्ट. अपने नेचर के लिए, अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स के लिए, किसी के लिए भी यू कैन बी ग्रेटफुल. एंड मैं बोलूंगी आपसे कल सबको ही मॉर्निंग में एवरीवन शुड राइट 10 ग्रेटिट्यूड फॉर वनसेल्फ. कभी नहीं लिखे होंगे, एटलीस्ट 10 अपने लिए तो लिखें. Yeah, All 10 for us. मेरे को सुनने में मुश्किल होगा. That means what, you are underestimating yourself. No, you have more than 10. जो हस्बैंड्स को बोलते हैं हमारे ऊपर लिखने के लिए, ज्यादा बेटर होता है. We feel happiest. उनके लिए एक प्रैक्टिस का दे देते ना. अभी भी यही करते कि बस तुम खाना अच्छा बनाते हो. क्योंकि उनका काम उससे हो जाता है. अभी भी हम लोग यही चाह रहे हैं कि सामने वाला बोले, सामने वाला बोले. हम तो इस क्लास के बाद अपने आप को ही अप्रिशिएट कर लेते हैं कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी नाइस. You start appreciating yourself, पता चलेगा सामने से अपने आप appreciation. पायल जी, in my morning blessings मेरा तो 4-5 अपने लिए ही होता है कि मेरा इतना अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया है, मैं इतनी सुंदर हो गई हूँ, मैं इतना, मेरा रोज डेली मतलब मेरी एग्जैक्टली मेरे को अपनी दिन दुगनी रात चौगनी मेरे को अपने आप से प्यार होते जाए. सच 4-5 मिनट मेरा होता है. That's why you can spread the magic and the love and the gratitude. Payal ji, sorry, Payal ji, I want to say something. हाँ जी, रेनू जी. Yes, रेनू जी, कैमरा बंद है, अब तो दिखा दो अपनी शक्ल. सबके यहाँ से बहुत पड़ रहा है. 1 2 3 4. क्या करना है? The child is not letting her speak, I think. Yes, Neha. मैम, मैं जब ड्रीम लिस्ट बना रही थी ना, तो माय हस्बैंड वाज देयर इन फ्रंट ऑफ मी. तो मतलब व्हेन ही सॉ द एंटायर प्रोसेस, ही वाज आल्सो क्वाइट fascinated. He told me कि तुम, he told me 2-3 things on his mind and said तुम मेरे लिए भी एक बना दो. And for him, like his dream list, can I do it? Dream list, so he should write it vision down. board, sorry, Vision board. You can help him in making his vision board. हम लोग वैसे professional help ही लेते हैं. If he tells me his top 10 desires, can I make the vision board for him? हाँ,
बट आस्किंग वो जो छोटा छोटा नोट जो लिखना है ना, यू डोंट राइट, लेट हिम राइट, एंड उनको देखना होगा रोज अपना विजन बोर्ड, तो उनको देख के विजुअलाइज करना। यू कैन ऑलवेज हेल्प, let person never say no to any person, you say yes and do it, वो अपने आप फीलिंग्स अपना जनरेट होगा, he himself will, you know, चेंज करना होगा तो he will change also। हाँ, यस रेनू जी आप अब बोल सकते हो, आपको अनम्यूट करना होगा, आप म्यूट हो, अनम्यूट करके बोलिए, कांट हियर यू, नहीं हो रहा है, आई कांट अनम्यूट हो, नो आई कैन, You can maybe. म्यूट हो गया, अब बोले क्या? हाँ अब म्यूट हो गया। नहीं अभी सुन रहे हैं रेनू जी, अभी सुन रहे हैं, बोलिए। मेरी younger daughter, सब everything is fine in his in-laws house, but he is not happy. What is the reason about this? Younger एक daughter, बेटा, yeah, younger daughter. She's married last 2 years. Everybody is okay, but she is not happy for her attitude or for her behavior. What can I do for her? How a blessing for her? हाँ, तो आप खाली उनके लिए अच्छी अच्छी बातें जो है अपनी डॉटर के लिए आप लिखिए, आप ग्रेटिट्यूड लिखिए, अपने ब्लेसिंग देते जैसे रहिए, कि अपने मैं- बच्चों को सिर्फ ब्लेसिंग दीजिए कि वो बहुत ही खुश है, वो अपने घर में बहुत खुश है, उनका रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा है, शी इज अ मदर, शी इज द बेस्ट मदर, यू नो, ऐसे करके उनके लिए लिखते जाइए। और उनको ये हर मत बोलिए husband कि is तुम्हारे okay. कारण जो हम लोग बोलते थे ना बच्चों के, तुमसे नहीं हाँ, होगा, हाँ। तुम ही ये करती हो, तो वो क्या हो रहा है ना, इनडायरेक्टली हम लोग अपनों के शब्दों को बहुत पकड़ना होता है, हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो वैसे ही बन जाते हैं। But her husband is okay. But na, parents is very obedient to her his parents, not obedient to her. अपने husband वो अपने parents के लिए बहुत obedient है, पर wife के लिए तो obedient नहीं है वो। Every time favor के अपना parents के favor करता वो, इसका favor कुछ भी नहीं करता है। तो ये तो So कंप्लेन she's हो रहा है every ना, time आप with यहाँ me. पे सोचिए 4 कंप्लेन कर दी अपनी जमाई के लिए ना, तो आप उनके लिए अब 10 कम से कम नियामतें लिखिए, एक कंप्लेन के पीछे 10 है, 3 या 4 आप बोल दिए तो 40 लिखिए अब आप। क्या जैसे मैं लिखूं क्या blessing? बिल्कुल, उनके लिए आपको लिखना होगा, आप लिखिए और फिर आप देखिए, यू नो, क्या कंप्लेन लिखूं करना, दीदी? उनके बारे में बातें करना लोगों से बंद कर दीजिए। Okay. कीप हाँ, ब्लेसिंग ठीक योर है। चिल्ड्रन एंड कीप राइटिंग गुड थिंग्स, ब्लेसिंग मतलब उनकी अच्छी बातें उनके बारे में लिखिए। कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे रह रहे हैं, हाँ अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से वो मेरी बेटी से प्यार कर रहे हैं, हाँ जी, एकदम इस जो तरह से आप मैं लिखूं। चाहते हो ना, जो आप चाहते हो ना वो सब आप लिखिए, हाँ, कि वैसा अच्छा वैसा अच्छा, लिखिए। और किसी और से उनके बारे में कुछ शिकायत या बातें नहीं करनी है, जहां मुंह से नहीं निकल नहीं गई एक करती हूँ। शिकायत तो आप 10 को उनके हाँ, बारे में वापस लिखिए, अच्छा अच्छा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपको खुद ही चेंज दिखने लगेगा। अच्छा। सेकंड थिंग, एक मेरी बड़ी बेटी है, 5 साल हो गया शादी को, वो कंसीव नहीं कर पा रही है। शी इज ट्राइंग लॉट ऑफ की कंसीव हो, पर व्हाट टू डू फॉर द देखिए प्लेसिंग ये फॉर हर। मैजिक ऐसा नहीं है कि सच में ऐसे करेंगे और मैजिक हो जाएगा, नहीं नहीं, इसका आई मतलब ये ट्राई है, माय बेस्ट, हाँ, तो उनको भी आई वो ट्राई माय बेस्ट। ग्रेटिट्यूड तो लिखना पड़ेगा, उनको लिखना होगा, आप उनको घर के लिखना लिए होगा। आपके करने से नहीं होगा, शी हैज टू ओके, वो लिखेगी, पहले हेल्प मी कि मैं उसको क्या बोली वो लिखे, हाँ, जो मतलब क्या अपने लिखे टू डू हर। अपने यूट्रस के लिए, अपने हेल्थ के लिए, और बच्चे का विजन बोर्ड कोई पिक्चर लगा लीजिए, उसको विजुअलाइज करिए, कहीं कोई बच्चा दिखे तो ये नहीं करना है कि वाह उसकी फैमिली देखो कंप्लीट है, वो तो फुल है, मतलब उसके पास बच्चे हैं मेरे पास नहीं है, ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए। बच्चे जितने ओके, भी आए ठीक है। उनको प्यार देना चाहिए, एंड ये अच्छा करना अच्छा, चाहिए ठीक है। वाह कितने खुश है, कितना कुछ, मेरे गोद में भी मेरा भी बच्चा ऐसे होगा, यू नो, दैट्स गुड फीलिंग अबाउट चिल्ड्रन। और कभी कभी हम लोग यूट्रस के लिए ना बहुत, मतलब स्टार्टिंग एक ट्यूब जम्प पीरियड जो होते हैं उसके लिए भी कंप्लेन अ लॉट, so it gives us trouble in the future, तो उसके लिए भी हमेशा ग्रेटिट्यूड देना है। बहुत लॉट ऑफ थैंक्स जी, बहुत थैंक यू सो Welcome। मच। और एक दिन में ये नहीं होगा, अगर हम लोग ग्रेटिट्यूड में रहेंगे तभी ये वर्क करेगा, ओके otherwise ओके, it doesn't work। आई टेल हर कि तुम ग्रेटिट्यूड मारो और थैंक यू बोलो, बच्चों को प्यार करो, एंड रिटन डाउन अबाउट थिंग्स एंड लॉट ऑफ स्वीट पिक्चर, बेबी पिक्चर, हाँ जी, एंड गुड थिंग्स अबाउट हर, गुड थिंकिंग अबाउट देम। absolutely। लॉट ऑफ थैंक यू पायल जी, बहुत Thank अच्छा you, लगा आपसे बात God करके। bless your children and soon they will fulfill their dreams and desires। यस यस यस, थैंक यू पायल जी, लॉट ऑफ थैंक यू सो मच। Thank you for coming, आई I'm seeing वेरी, you for the first time। yeah, आपको I भी मैं am very मिलूंगी। first time to you, talk to you, yes. Sunita is referred to me, you joined this, that I joined. अच्छा, सुनीता जी ने आपको क्या? Yes. सुनीता जी खुद ही नहीं है हाँ आज? हाँ, she is my bhabhi. Okay, She is my bhabhi. all right, She that's came nice। to my house and she told me
दीदी आप ये ज्वाइन करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसी दिन से मैं ज्वाइन कर ली। मैं बोले बीच में, बोले कोई बात नहीं, बीच में मैं फिर से स्टार्ट से फिर ज्वाइन कर लूंगी। अच्छा, तभी आप शुरू से करिएगा, नेक्स्ट टाइम होगा ना मैं अभी सारे लास्ट वीक प्रैक्टिस से, करेंगे। मैं लास्ट वीक से ज्वाइन की हूँ आपको। ओ, तब तो बहुत लास्ट में आएगा। हाँ, मैं फिर से आपका, फिर जब फर्स्ट होगा तब से स्टार्ट करूंगी। आप 28 डेज का क्लास करूंगी आपको। एकदम, बस अब मैं बच्चों को विश करूंगी कि बच्चे अच्छे से रहे। एकदम एकदम। आपका आप भी उसके विश करिए, आप भी ब्लेस करिए मेरे बच्चों को। Absolutely, my wishes are with everyone. मैं टीचर, आई वंडर फॉर यू। अब आप जो ब्लेसिंग करेंगे ना 100 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होगा मेरे बच्चों के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, I still need to, even I am practicing. तब तो मेरे नहीं, लाइफ में हम बल्ले बल्ले हो जाती है। रेनू जी, God bless you both the daughters, and बहुत खुश हैं, बहुत 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 खुश हैं। They are very happy in their house. God bless them with good and happy life. Please Okay, सबका thank you, blessing thank लीजिए you. यहाँ पे, that will work, that will work, you know, mass blessing. Thank you, all of you. Thanks, sisters. All thanks. Thank you so much. Thank you so much, my all best sisters. Absolutely. तो और किसी का कोई शेयरिंग और एनी क्वेश्चन वुड लाइक टू शेयर? कल हम लोग टेक अवेज लेंगे कि इस एक महीने में आप में क्या चेंजेस दिख रहे हैं, व्हाट हैव यू नो फाउंड योरसेल्फ? मेरा मैग्निफिसेंट आउटकम था कल। ओह योर्स, यस प्रीति। या कल मैं शॉपिंग के लिए गई थी। नॉर्मली आई डोंट फाइंड, लाइक आई सी सो मेनी क्लोथ्स, बट कभी कोई अच्छा नहीं लगता है, फिटिंग अच्छी नहीं है, कभी क्या। बट आई हैड गॉन विथ मैग्निफिसेंट आउटकम दैट आई विल गेट lots of clothes and all that, and कल मेरा magnificent outcome बहुत अच्छा हुआ। and secondly मुझे एक बहुत बड़ा डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट मिला। एक like yeah, nice प्रीति जी। lovely, so it's working. Priti, do shopping for us also. okay. Sure, Anita. That's nice. Yes. और किसी का कोई शेयरिंग या क्वेश्चन? तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना, मैजिक को छोड़ना नहीं है। मैजिक को खत्म होने के बाद ये नहीं है प्रैक्टिसेस कम हो जाएंगे तो मैजिक भी कम हो जाएगा। अकाउंट को अभी भी हम लोग को और बढ़ाना है, क्योंकि अल्टीमेटली डोंट फॉरगेट आवर ड्रीम्स एंड डिजायर्स, वी हैव टू अचीव दैट, और उसके लिए हम लोग को बहुत कमाई करना है। यस नीता जी, एक क्वेश्चन है, जो वो मनी के लिए आपने बोला ना, एनर्जी करके डेली 3 नोट्स देना है, मतलब सर्कल, हाँ सर्कल, तो उसमें जैसे मेड को ही अगर हम 3 नोट दे दे कि आगे आप मतलब आपके बच्चों को 3 different people, try to do it 3 different people, 3 अलग अलग जन को दीजिए, क्योंकि एनर्जी मतलब हर जगह जाना चाहिए ना। पायल जी, अगर इसमें कभी कोई ब्रेक लग जाए, मतलब 1 दिन नहीं दिया या 2 दिन नहीं हाँ, दिया, ऐसा होता है। अभी पैंडेमिक के टाइम में तो बहुत बार ऐसा हुआ, मेरे साथ तो होता है। बट यू नो वो है कि मेरे को क्या लगता है ना बेला जी, मुझे आई हैव अंडरस्टूड आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर सो लॉन्ग। कहाँ से आवाज आ रहा है? मैं म्यूट कर रही हूँ सुमन जी को। आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर सो लॉन्ग कि बिलो द लाइन में जाना इज द वर्स्ट थिंग, यू नो। वो अगर रहता है उसमें इमोशंस में हम लोग रहते हैं ना, नथिंग वर्क्स। लेकिन जो चीज अगर आपको यू नो वरी, चिंता, या यू नो इट्स नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट कि मेरा ब्रेक लग गया, हाँ मेरा ब्रेक लग गया, व्हाट विल हैपन, तो नथिंग वर्क्स। कोई बात नहीं, कल मैं 50 रुपया किसी को दे दूंगी, कहीं मिली, आई डू दैट देन। कुछ सर्कल्स बस चालू है, लेकिन बीच में बोलते हैं स्टॉप नहीं होना चाहिए, बट इवन इफ इट स्टॉप इट्स ओके, इट्स ओके। वही, बिकॉज रोज तो निकलना नहीं होता, पॉसिबल नहीं है, राइट। सो बट व्हेनेवर वी गो तो दे देते हैं, लाइक बट जिनको मनी एरिया में सच में मिरेकल चाहिए, देन दे डू इट, यू नो, मेक इट अ पॉइंट टू गो डाउन, मे बी अ स्मॉल वॉक अराउंड द एरिया, और जो दिखता है 3 जन उनको दे देते हैं, जिनको उस एरिया में सच में बहुत जरूरत होता है, तो दे डू इट। और कभी भी लाइफ में जैसे कुछ भी प्रॉब्लम आए, स्ट्रगल आए, यू नो, ऑलवेज थिंक दैट दिस इज हैपनिंग फॉर समथिंग गुड ओनली, क्योंकि वो तो आएंगे अप्स एंड डाउन्स, यू नो, देयर इज आल्सो अ स्टोरी बिहाइंड दिस आल्सो। पर अभी टाइम नहीं है, इट्स ऑलरेडी 5:20। शैल आई सुनाइए पायल जी प्लीज? यस प्लीज सुनाइए। छोटा सा स्टोरी है। एक बार देयर वाज व्हाट आई रिमेंबर इज एक राजा था, किंग, नहीं तो उसके अगल बगल में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो बहुत वॉरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते थे, जहाँ लड़ाई, बट ही वाज वेरी कंटेंटेड, क्योंकि उसका एक तो एडवाइजर था जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था और उसको गाइड करता रहता था। बट उसका एक बात वो हमेशा बोलता था कि व्हाटएवर हैपेंस इन योर लाइफ,
you know, whatever happens in your life, God has something good for you. You know, हमेशा आपके लिए भगवान कुछ अच्छा ही सोच के रखता है, whatever happens. तो राजा बहुत कभी-कभी इरिटेट हो जाता था कि यार जाके को ये बोलता रहता है, पर फिर भी वो ध्यान नहीं दिया. एक दिन अपने किसी कोर्ट में एक गर्ल थी जो उसको बुलाए और मतलब अपना थोड़ा सा अपना केयर ले रहा था. ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज यू नो नेल्स एंड ऑल. तो उसको बोल रहा था कि थोड़ा सा करने के लिए. एंड इतने में कुछ ऐसे बिजली वगैरह कड़की अगर ऐसा कुछ आंधी तूफान स्टॉर्म सा आया एंड दैट गर्ल थोड़ा सा शेकअप हो गई. तो उससे क्या हुआ, इसके राजा की थोड़ा टिप ऑफ द फिंगर कट गया. एंड ही रियली गॉट एंग्री. इतना गुस्सा हो गया. और इतने में एंड ही ओवरहर्ड कि जो उसका एडवाइजर था वो बोला व्हाटएवर हैपेंस टू अस इन लाइफ द गॉड हैज समथिंग गुड फॉर अस. और वो सुन लिया तो उसको और भी गुस्सा आया. तो उस गर्ल को तो जेल में डाल दिया, साथ में अपने एडवाइजर को भी बोला डंजन में मतलब जेल में उसको डलवा दिया. एंड देन ही वाज फुल ऑफ एंगर दैट डे. तो नेक्स्ट डे वो अकेले घोड़े पे चला गया क्योंकि वो बहुत गुस्से में था. वो राइड करता रहा जंगल में, आगे 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 गया. एंड ही मेट सडनली देखा ही वाज सराउंडेड बाय फ्यू पीपल. तो वो देखा, बोले इन लोग कौन है, थोड़े ट्राइबल टाइप के लोग थे. तो उसको उन लोग ने उतारा एंड दे यूज्ड टू वर्शिप कोई गॉडेस खली. तो उसको उन लोग ऑफर करते हैं ना, कोई किसी का बलि चढ़ाते हैं दैट पे. तो उसको उतारे, उसको राजा को स्ट्रिप बोला कि यू डोंट नो हु आई एम अ किंग, आई एम अ किंग. बोला वी डोंट केयर, वी जस्ट वांट टू मेक अ गॉडेस हैप्पी. हमको उन लोग को आपका बलि चढ़ाना है. एंड उसको लेकर गए, उसको पूरा अच्छे से नहला वला के किए. तो द टाइम केम जब उनको चढ़ाना था तो वन ऑफ देम ऑब्जर्व कि उनका एक टिप ऑफ द फिंगर कटा हुआ है. देन दे वर लाइक नो 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 वी कांट ऑफर हिम टू गॉडेस. यू नो उन लोग का था एक तो कस्टम कि वो फुल बॉडी पूरा अच्छा चाहिए, ये तो ऑलरेडी यू नो कटा हुआ है. तो उन लोग उसको वैसे ही छोड़ दिए. राजा वाज वेरी शेकन अप और वो उसी हालत में गया. एंड ही कुड अंडरस्टूड कि आज इस कटे हुए फिंगर के कारण वो बच गया, अदरवाइज उसका बलि चढ़ता था. तो वो बोलते हैं कि जाओ जाओ जेल में से उस गर्ल को छोड़ दो और उसके एडवाइजर को भी. तब फिर वो उसको लेकर आते हैं और तब फिर वो उसको एडवाइजर को बताता है कि यू नो आई गॉट सेव बिकॉज ऑफ दिस कट फिंगर, कि तुमने मुझे बचा लिया. नाउ आई अंडरस्टूड कि सच में व्हाटएवर हैपेंस गॉड हैज समथिंग गुड फॉर अस. बट तुमको मैंने जेल में डाला तो इसमें तुम्हारा क्या अच्छा हुआ. तो वो एडवाइजर बोलता है कि अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते, मैं तो हर वक्त आपके साथ जाता हूँ. आपका कटा हुआ फिंगर होता, आपको तो छोड़ देते, पर मेरा बलि चढ़ जाता. बिकॉज सिंस आपने मुझे जेल में डाल दिया था तो देखिए गॉड मेरे लिए भी सोचा, मैं तो बच गया. तो ऐसे ही लाइफ में बहुत से स्ट्रगल्स आएंगे, टफ टाइम्स आएंगे, बट हम लोग को यही सोचना है गॉड हैज यू नो थ्रोन दिस एट अस, वी हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम इट. यू नो इसमें भी कुछ अच्छा ही है. मे बी आफ्टर वी विल रियलाइज दिस आफ्टर 6 months, मे बी आफ्टर सर्टेन years, बट समथिंग गुड इज देयर. हमेशा ऐसे सोच के आगे बढ़ेंगे तो वो जो ट्रबल आएगा ना, लगेगा गॉड इज यूनिवर्स इज टेस्टिंग अस एंड इट्स अ चैलेंज एंड लेट अस ओवरकम. It just reminded me of that story. Very nice. पायल जी. Story. पायल मैम, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? हाँ, yes. आज जैसे मैं अपनी सारी प्रैक्टिसेस ये सुबह करती हूँ, तो आज जैसे थोड़ा किया, उसके बाद बहुत नींद आने लग गया तो सो गई. तो वो अब फिर वो थोड़ा डिले भी हो गया, कुछ बाकी भी रह गए. तो जैसे एवरीडे अगर एक दो कुछ नहीं हो पाता है, जैसे ट्राई करती हूँ कि एवरीडे कुछ कुछ हो जाए, बट इन केस कुछ एक दो अगर छूट गया कोई दिन, तो इज इट ओके? इट्स ओके. और जरूरी नहीं है सारा मॉर्निंग में हो ना. ओनली लाइक यू राइटिंग योर ब्लेसिंग्स, वो मॉर्निंग में होना चाहिए. एंड जो मैजिक रॉक है जस्ट बिफोर यू गो अप टू स्लीप. और बाकी प्रैक्टिसेस है, अभी थोड़ा मॉर्निंग में साथ साथ में टाइम था कर लिया, उसके बाद दिन में कभी आपको मौका मिल रहा है, टाइम यू कैन डू इट एट दैट टाइम आल्सो, इवनिंग आल्सो. यू नो जैसे अभी मॉर्निंग इज एक्चुअली मॉर्निंग इज एक्चुअली द बेस्ट टाइम. वो उस समय खाली रहते हैं, जितना पॉसिबल होता है उस समय हो जाता है. हाँ, वो आप अपना स्ट्रक्चर खुद बना लीजिए. आपको मॉर्निंग में जितना मिलता है ठीक है, कुछ छूट गया आपको बाद में करना है, यू रियली वांट टू, यू कैन डू इट. इफ यू डोंट वांट टू, यू नो टुमारो यू कैन डू इट. वही पूछ लो भाई, कोई दिन कोई कारण से अगर कुछ छूट गया तो वो अगले दिन कर सकते हैं ना, वो कोई. और जिस चीज में हम लोग को मिरेकल कॉज करना है ना, वो कभी भूलते नहीं है, वो हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं. हाँ, यस, एक्चुअली सही बात है. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू. यस सविता जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, मैं बोल रही थी कि जैसे ये सॉलिटेड डायमंड का रिंग ऑर्डर हो चुका है, मैंने चेक उसी के लिए लिखा था. तो रिंग हाँ, तो वो
चेक को रिंग आने के बाद हटा के दूसरा चेक लिखूं कि अभी उसी को ही रहने दूं? एक बार आ जाता है उसके बाद, और वैसे आपका चेक पूरा हो गया है, यू नो, आप उसको चाहे हाँ। साइड में रख के आप नया भी लिख सकते हो, बिकॉज वो तो हो ही गया आपका पूरा। Congratulations, Savita ji. Thank you so much. Congratulations. Thank you. Acha, Radhika was also saying something. She left, I think. Thank you, Radhika. I can read the message. So let's pay our gratitude. It's 5:30. Thank you, God. Thank you, viewers. Thank you for causing miracles and magic in our life, in everyone's life. Thank you, Payal. Thank you so much. Thank you. Tomorrow Thank you also. for- Thank you, Payal ji. Tomorrow is the last day, and कल हम लोग picture click करेंगे. I forgot to click. Oh, I won't be there. हाँ, Even तो I अभी won't be अभी there. अभी आप एक स्माइलिंग फेस दे दीजिए, मैं अभी खींच लेती हूँ आपका। Yes. Thank you, Payal. Thank you. Priyanka. Thank you all. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you. Thank you, Nita. Bye. Thank you to Akansha for getting me here. Yes, Yes. this is not there. कल आएगी वो। Yeah, Thank today you, she has not Priyanka. come. हाँ, all right. See you all tomorrow. you. Spread love. Bye. Love you Bye-bye. all. Bye-bye. Thank you. Bye.